Honorable Speaker, sir. Sir, I thank you very much for giving me the opportunity, sir. Sir, first and foremost, the most important question I would like to ask through you to Honorable Minister, who is also Minister for Legislative Affairs, sir, is that what is the relationship between Musi and Miralam? Is Miralam part of Musi or Miralam is separate? As per my knowledge, sir, Miralam has nothing to do with Musi, sir. I don't know how did the office of a secretary Saab accepted such a question where they are talking about two subjects. One is Musi, one is Miralam. Sir, whenever any issue is raised in zero hour also, we are supposed to raise an issue pertaining to a single issue. Two issues, three issues cannot be clubbed in that. An Honorable Minister Saab, who is also a Legislative Affairs Minister, is giving a reply. Sir, a member will give any question. It is the duty of the office of the Secretary, Legislative Affairs, that he should look into that, what is the concern, and he should correct the questions and then admit the questions. So I think it's high time that government should take a serious note in such things, and the performance needs to be improved. I hope they will take it serious and improve themselves and also this, sir. It is very sad, sir. Sir, further going ahead, sir, Honorable Minister Saab had given a reply that consortium will study a plan, analysis, design, prepare and submit the following DPR in 18 months. Sir, through you I would like to ask specific questions because this is the question hour. When did this 18 months start? Because we are already hearing this Musi project right from the day the new government took oath, and it's 2 years now. So when have you given them this project to be studied? And what is the deadline? When is this 18 months ending? It is very important, sir. Sir, secondly, sir, when they call this Musi project, through you I would like to ask, sir, what is the originating point of Musi and the ending point of Musi? What is the total stretch of kilometers of Musi, sir? So now again in this answer, sir, here the Minister Saab says that the project is divided into 5 zones. 1, 2, 3, 4, 5, MRDCL is taking up Zone 1, reaching 21 kilometers, Usman Sagar, Himayat Sagar. Sir, I would like to know, sir, what does he mean by saying this, reaching? Sir, I am not a very knowledgeable person, sir. The government, the bureaucrats, they have a lot of knowledge. They should tell, sir. Sir, I know, sir, आप भी वैखाराबाद से आते हैं, sir. जहां तक मुझे मालूम, sir, वैखाराबाद से वो आपके जो हिल्स है ना साहब ऊपर, आनंदगिरी हिल, सर, वहां से मूसी स्टार्ट होता है, जहां तक मुझे मालूम। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूं, सर, मिनिस्टर साहब से, क्या आप मूसी प्रोजेक्ट को आनंदगिरी हिल से ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सर। अगर ले रहे हैं तो आपने ये जो स्टडी के लिए जिसको भी जिम्मेदारी दी है, क्या आपने उनको ये भी जिम्मेदारी दी है कि आनंदगिरी हिल से आप खत्म जहां तक हो रहा है वहां तक स्टडी करना है? क्या ये 1, 2, 3, 4, 5 में वो इंक्लूडेड है या नहीं है? काइंडली इसका भी जवाब दीजिए, सर। और एक चीज मैं ये पूछना चाह रहा हूं, सर, यहां पे इसमें बोले हैं कि उस्मान सागर एंड हिमायत सागर बोल के बोले हैं साहब, बापू घाट तक 55 किलोमीटर, सर। मैं ये भी जानना चाह रहा हूं, सर, कि इसमें आपने डिफेंस की लैंड के बारे में जिक्र किया है, सर। इसमें प्राइवेट लैंड्स कितने हैं? इसमें दूसरे प्रॉपर्टीज कितने हैं?
उसका पूरा डिटेल क्या आप देंगे? और सर मैं आपके जरिए यह भी जानना चाहूंगा सर कि हिमायत सागर, उस्मान सागर को आप गोदावरी से पानी डालने का अपने जवाब में आपने कहा है, तो मैं ये जानना चाह रहा हूं क्या सीधा गोदावरी में से उठा के डाल रहे हैं या गोदावरी में से कोई एक प्रोजेक्ट बना के गोदावरी का पानी वहां पे स्टोर कर उसके बाद वहां से आप पंप कर रहे हैं, या फिर आप कैसे लेके जा रहे हैं? वो रास्ता क्या है जो पानी वहां तक जा रहा है? उसके ऊपर मैं चाहूंगा कि आपके जरिए मिनिस्टर साहब उसका भी जवाब दें सर। सर मैं ये भी जानना चाहूंगा सर कि आप हिमायत सागर, उस्मान सागर की बात कर रहे हैं सर, थ्रू यू आई वुड लाइक टू नो सर what is the total catchment area of Usman Sagar and Himayat Sagar? What are the encroachments on the catchment area of Himayat Sagar and Usman Sagar? What is the plan for removing the catchment area, sir? Sir, as per my knowledge, sir, again I would say, sir, I am not a very knowledgeable person, but still, sir, थोड़ा बहुत जो मुझे मालूम है वो ये है कि sir, international airport is the catchment area of Himayat Sagar. Outer ring road बड़ा क्रेडिट लेते हैं कि हमने बनाया, हमने किया, ठीक है भाई, जिसने भी किया, जो भी किया, लेकिन सर लास्ट बारिशों में हम देखे सर हिमायत सागर, उस्मान सागर की गेटों को, पूरे गेटों को भी नहीं खोला गया था सर। खैर वो गेटों को भी क्यों खोला गया, किस लिए खोला गया, वो अलग बहस है सर, वो अलग बहस है। उतनी जरूरत नहीं थी खोलने की, लेकिन अचानक खोल दिया गया, वो खैर अलग बात है वो सर। वो खोलने के बाद में आउटर रिंग रोड पूरा पानी से भर गया था, नीचे का एरिया बंद हो गया। तो इज द रिजुविनेशन ऑफ मूसी इंक्लूड्स all these wrongs which has been done? Are they going to correct these wrongs also? Are you going to correct this? अब जो बारिश का पानी जो है हिमायत सागर, उस्मान सागर नहीं ले रहा है, गोदावरी का पानी आप ला के डालेंगे और बारिश भी आएगी, तो फिर वो पानी जाएगा कहां सर? एट द सेम टाइम सर आई वुड लाइक टू आस्क टू यू सर, क्योंकि ये मूसी सर मूसी आपके पास एरिया से, वहां से ओरिजिनेट हो रही है। कैन द ऑनरेबल मिनिस्टर साहब गिव मी द डिटेल्स of to how many check dams have been created? Check dams सर अगर मैं बोलूं तो लोगों को खराब दिखेगा सर। आंध्रा वालों ने जब हमारी रियासत में आंध्र प्रदेश था, तेलंगाना नहीं बना था, हिमायत सागर, उस्मान सागर को सुखाने के लिए चेक डैम्स बनाते गए सर। आर यू गोइंग टू फिनिश द चेक डैम्स? Are you going to completely make a list of all the check dams which are obstructing the water? So these are the specific answers जिसके लिए हम जानना चाहते हैं सर। और क्या आपके पूरे प्रोजेक्ट में, अब आपने सिर्फ बापूघाट तक का कहा है, तो मैं जानना चाह रहा हूं कि आप ओरिजिनेट जहां से हो रही है मूसी, वहां से लेकर क्या जहां तक एंड हो रही है, क्या आप मूसी को करेंगे? और सर इंक्रोचमेंट्स का क्या करेंगे? स्पेसिफिक आंसर्स होना है सर उसमें सर। और मैं ये भी कहूंगा, एज फार एज MIM पार्टी इज कंसर्न, गुर्बत, पसमानदगी, पिछड़ेपन का शिकार हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अखलियत रही। नाइंसाफियां उसके साथ होती रही है, जिंदगी के हर शोबे में उसके साथ नाइंसाफी होती रही। यह आलम है कि SC/ST से भी पीछे अगर कोई है इस मुल्क में, तो वो मुल्क का मुसलमान है। और मुसलमान नदियों के किनारे, रिवरबेड के किनारे, गंदगी के किनारे भी एक छोटा सा आशियाना बना लेता है और अपने ख्वाबों को सैंच लेता है। और आज ये मूसी प्रोजेक्ट के नाम पर गरीब लोगों के घरों के आशियानों को उजाड़ने की भी बात कही जा रही है। मैं उम्मीद करूंगा कि आप गरीबों के घरों को नहीं उजाड़ेंगे, आपके पास एक मुकम्मल मंसूबा होगा। जब मैं गरीब के घर और उसके आशियाने की बात कर रहा हूं, तो कोई ये ना समझे कि हम डेवलपमेंट के खिलाफ हैं। नहीं, हम चाहते हैं कि डेवलपमेंट आए, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ टेकिंग अवे, स्नैचिंग अवे द लाइवलीहुड्स ऑफ द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर।
गंदा पानी बह रहा है, बो आ रही है, मच्छर है, बीमार हो रहे हैं, लेकिन फिर भी एक घर बना के वहां पे जिंदगी गुजार रहा है। क्या आप उसके घर को उजाड़ देंगे, या फिर आपके पास कोई मंसूबा है, कोई प्लान है जिसके जरिए आप करेंगे? सर वहां पे ऐसे भी घर हैं सर, ऐसे भी पट्टास है सर, पट्टास है, पट्टा है उनके पास, ऐसे भी घर है जो ग्राउंड फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड फ्लोर है। अगर आप बोलेंगे कि 3 मंजिला इमारत में रहने वाला एक 2 बेडरूम में चला जाए तो कोई कैसा जाएगा सर? तो ये इस चीज पर भी गौर करना चाहिए, और इसको कैसे कर रहे हैं सर? सर एंड लास्टली सर आज से 3 साल पहले अंडर द चारमीनार पेडेस्ट्रियनाइजेशन प्रोजेक्ट, it was decided after having meetings with MIM legislators and myself that we are going to have a rehabilitation or relocating plan for all the hawkers who would get affected under Charminar pedestrianization project. It was decided 3 bridges will be made, two at Nayapul and 1 at Salarjung Museum. A GO was issued, financial allocation was also done. तो मैं ये पूछना चाह रहा हूं सर, ये मूसी प्रोजेक्ट के नाम पर वो जो चारमीनार पेडेस्ट्रियनाइजेशन में पत्थरगट्टी से लेके मक्का मस्जिद तक छोटे बंडियां वाले, डब्बे वाले हैं, उनको रीलोकेट करेंगे बोले थे, क्या इस प्रोजेक्ट का हिस्सा वो आज भी है या नहीं है? क्या आप ये प्रोजेक्ट चलते रहेगा? क्या आप वो 3 ब्रिजेस, 4 ब्रिजेस का परमिशन देंगे? और वहां पे सर इट्स अ ब्यूटीफुल ड्राइंग सर, beautiful drawings have been made. We have had appointed consultants, they have prepared a beautiful drawing, everything is ready. Kindly issue the necessary funds so that the bridges can be taken up, and a Charminar pedestrianization जिसको लोग बोलते थे कि कभी हम सुने सर, हम सुने हम वो भी सर इस्तानबुल बना देंगे बोले सर, इस्तानबुल ने सर चारमीनार पेडेस्ट्रियनाइजेशन प्रोजेक्ट कर दिए, वो बोल के चले गए सर, अब ये भी आए हैं बोल रहे हैं, उम्मीद है कि आप करेंगे। तो सर मेरे स्पेसिफिक जो क्वेश्चंस है इसके ऊपर जवाब दीजिए, और अगर मूसी प्रोजेक्ट अगर ओरिजिनेट जहां से हो रहा और एंड जहां तक होगा तो इसके लिए कितना फंड रिक्वायर होगा, कितने इंक्रोचमेंट्स है, कितने लीगली लोग अपने पट्टे के बाद है, और उनको कैसे हटाएंगे और आप कैसा उनको करेंगे? क्योंकि सर हम नहीं चाहते, हम तो अपोज करेंगे, क्लियरली कह रहा हूं हम अपोज करेंगे। अगर आप गरीबों के घरों को उजाड़ेंगे, उनको बेघर करेंगे, तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन खामोश नहीं रहेगी। सर मैंने एक पहला सवाल किया था जिस पे मिनिस्टर साहब ने जवाब दिया, मैं जानते बूझते वो सवाल किया था, और इस उम्मीद पे कि आप मेरे सवाल का वही जवाब देंगे। सर ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि शहर हैदराबाद के जितने भी तालाब हैं उनका फ्लड वाटर्स मूसी में ही जाता है, इससे इनकार नहीं है। मैं चाहता था ये सब्जेक्ट वास्ट हो जाएगा। सर मैं एक फ्यू सजेशंस देना चाह रहा हूं सर आपने कहा कि आपने एक कंसल्टेंट्स को अपॉइंट किया है और वो एक डिटेल रिपोर्ट बनाएंगे। सर मैं आपके जरिए हुकूमत से और बिलखुसूस चीफ मिनिस्टर साहब से दरखास्त करूंगा कि सर मूसी के 2 हिस्से हैं। सर एक हिस्सा वो है जो मूसी के जरिए तालाब में पानी लाता है, एक हिस्सा ये है जो तालाब का फाजिल पानी या फिर फ्लड वाटर्स, एक्सेस वाटर जो होता है गेट खोलने के बाद उससे जाता है। ईसा, मूसा, कृष्णा, गोदावरी, ये बिल्कुल आपकी बात सही है सर, इस बात से इनकार नहीं। लेकिन आज हमको ये देखना है सर कि ये जितने मूसा नदी हो, ये नदी नहीं रही सर, ये सीवरेज फ्लो के एरियाज बन गए सर। एंड वी आर टॉकिंग ओनली अबाउट the sewage which is flowing in the Musi
after Himayat Sagar and Usman Sagar. Sir, it is a very important concern, sir. JNTU and many experts have done one survey and they took a sample of Gandipet waters as rightly said by Honorable Chief Minister साहब कि वो गंडीपेट के पानी को भी पोल्यूट कर रहे हैं सर, उसमें भी सीवरेज जा रहा है सर, और उसका लेवल जब चेक करें तो पानी का लेवल उतना अच्छा नहीं है सर गंडीपेट का। मैं आपसे एक दरखास्त करूंगा कि कंसल्टेंट्स को जो आपने अपॉइंट किया है उन कंसल्टेंट्स को यह भी जिम्मेदारी दीजिए कि वेखाराबाद से लेकर हिमायत सागर तक और फिर ईसा से हिमायत सागर में जो पानी जा रहा है इसमें कितने ऐसे पॉइंट्स है जिसके जरिए सीवेज वाटर इज गोइंग। सर, ऑलरेडी रिपोर्ट इज देयर, यू कैन गिव दिस टू द कंसल्टेंट सर। This is very important, sir. And also, sir, one more important thing. I'm sure the government might be knowing, sir, in 2022, sir, in 2022, दुनिया के सारे रिवर्स के ऊपर एक स्टडी की गई थी, sir. And a Swiss report had identified the Musi was ranked among the most polluted rivers, sir. 22nd most polluted rivers, sir. So yes, we have to, take up this. It is very important. We are not opposing it. And Honorable CM साहब बोले हैं कि जो भी लोग मुतासिर होंगे उनको एकदम निकाल के नहीं फेंकेंगे, उनको मुतबादिल जगह देंगे, उनके मुआवजे को देंगे, तो इससे अच्छी बात और क्या होगी। सर, वन मोर सजेशन विच आई वांट टू मेक सर इज दैट कि सर ये मूसी प्रोजेक्ट में जो कंसल्टेंट्स को दिए हैं सर जैसा चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा कि आपके एरिया से अनंतगिरी से झाड़ है, उसकी जड़ी बूटियां हैं, पानी अच्छा आता है। सर, एक पार्ट है सर, हिमायत सागर उस्मान सागर के बाद में जो मूसी जाती है सर, वहां पे सर वो मूसी में भी सर वन नीड्स टू अंडरस्टैंड इज दैट सर ये बर्ड के स्पीशीज है सर, बर्ड के स्पीशीज है सर, like river terns to kingfisher sir, yellow wattle lapwing sir, grasshopper warblers बोल के ये चुड़ियां हैं सर, ये चुड़ियां हैं, बर्ड्स हैं जो आके वहां पे आराम करते हैं सर। जिस तरीके से झाड़ मूसी जहां ओरिजिनेट होती है वहां पर है सर, यहां पर भी बहुत सारे ऐसे झाड़ हैं मूसी जो आगे जा रही है सर, तो उसको भी प्रोटेक्शन करना है सर। वी हैव टू प्रोटेक्ट दैट ऑल्सो। तो मैं आपके जरिए हुकूमत से यही दरखास्त करूंगा सर कि आप वो कंसल्टेंट्स को उनके गाइडलाइंस में ये भी दीजिए कि इन सारी चीजों को भी स्टडी करने के। एंड लास्टली सर वन इंपॉर्टेंट थिंग विच नीड्स टू बी स्टडीड इज दैट सर कि व्हाट वाज द रियल कैपेसिटी ऑफ हिमायत सागर एंड उस्मान सागर जब ये बनाया गया, कितने साल हुए इसमें से सिल्ट निकालकर। Sir, the capacity has decreased, sir. Sir, the capacity has decreased. हम गोदावरी से पानी लाएंगे बोल रहे सर, बहुत अच्छी बात है, लाइए सर, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा गवर्नमेंट को आपके जरिए कि हिमायत सागर उस्मान सागर की जो कैपेसिटी है सर, उसको हम इंक्रीज कर सकते हैं सर। हम बार बार जो गेट खोल रहे हैं, ये 25 साल से सर उसका सिल्ट नहीं निकाला गया, उसकी कैपेसिटी को नहीं देखा गया। तो इस स्टडी में अगर आप ये भी ले लेते हैं तो इससे बहुत अच्छा होगा। एंड लास्टली सर आप मूसी को डेवलप कर रहे हैं और जो भी लोग उसमें मुतासिर होंगे उनको आप मुतबादिल जगह देने और उनको बराबर कंपनसेशन देने का वादा कर रहे हैं, हम इसका इस्तकबाल करते हैं। लेकिन सर मूसी के ऊपर चारमीनार पेडेस्ट्रियनाइजेशन के प्रोजेक्ट के लिए ब्रिजेस का है सर, अगर आप वो ब्रिजेस का अप्रूवल दे देते हैं तो उसके बाद में हम चारमीनार पेडेस्ट्रियनाइजेशन के काम को स्पीड अप कर सकते हैं सर। तो मैं आपसे दरखास्त करूंगा, सिर्फ 3 ब्रिजेस हैं सर और आपके मूसी के डेवलपमेंट या रिवर फ्रंट में कुछ नहीं होगा सर। एंड लास्टली सर आई वांट टू से सर आप सर मैं वेलकम करता हूं सर, बिकॉज आई लव हेरिटेज स्ट्रक्चर्स कि आप ये काउंसिल का हमारे ओल्ड असेंबली हॉल, टाउन हॉल जिसको बोला जाता है, उसको रिवाइव कर रहे हैं और वो अच्छा हो रहा है। लेकिन सर मैं ये कहना चाह रहा हूं सर, ये टाउन हॉल से पुरानी बिल्डिंग है उस्मानिया हॉस्पिटल, जब ये रिवाइव हो सकता है, ये जिंदा हो सकता है, तो उस्मानिया हॉस्पिटल नहीं हो सकता क्या सर? वी नीड टू प्रोटेक्ट द हेरिटेज सर। और हाई कोर्ट भी आप शिफ्ट कर दे रहे हैं, उस्मानिया हॉस्पिटल नया बना रहे हैं, फिर सिटी कॉलेज है, स्टेट लाइब्रेरी है, ये ब्यूटीफुल
मैं कहूंगा मॉन्यूमेंट्स है, हेरिटेज स्ट्रक्चर्स है, हमारी हैदराबाद की निशानी है, इसको भी प्रोटेक्ट करने के लिए मैं आपके ज़ेर हुकूमत से दरखास्त करूंगा और आपके ये मूसी रिजुविनेशन का जो प्लान है उसमें इन हेरिटेज स्ट्रक्चर के रिवाइवल का, रिजुविनेटिंग ऑल द हेरिटेज स्ट्रक्चर्स across the Musi also should be taken up in this project, sir. This is very important, sir. इससे हमारा टूरिज्म बढ़ेगा, लोग आएंगे। मैं उम्मीद करता हूं और मैं चीफ मिनिस्टर साहब से शुक्रिया अदा करूंगा कि यस ही इज राइट कि चंद्रायन गुट्टे के लिए ऑलमोस्ट 500 चेंज करोड़ का सिवरेज का आपने दिया है, इसके लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूं। हमारे पास दूसरे तालाबों के डेवलपमेंट के लिए भी दिया है। चंद्रायन गुट्टे में भी एक तालाब है सर, उसके लिए भी हमने एक ब्रिज का एक प्रपोजल दिया है, तो उसको भी अगर आप मंजूरी देते हैं तो हमारा पुराने शहर में और तरक्की आ गई। और नए पुल के पास के चारमीनार पेडेस्ट्रियलाइजेशन के ब्रिजेस की मंजूरी का अगर आप ऐलान करेंगे तो मैं आपका काफी ममनून और मशकूर रहूंगा सर।